So, good morning once again. Well, this is Vikas Jain, your old friend, once again with you. So, well, buddies, today we are going to have another part of narrations. Now, you will be thinking that why I'm giving that much emphasis on narrations or why I'm emphasizing the narration that much. There's a reason. Without reason, I don't do anything. Well, friends, the fact is, when you talk about your competitive examinations, obviously, not only the competitive examinations, but also the placement or that the campus interview sessions where you participate in the aptitude test, English test, their active passive narrations and subject verb agreement. These three are so crucial. Your command over these three can change the entire picture of your selection procedure. Yes, sir, it is always will giving you the upper hand or the upper side. Well, if you just go for last year so many papers or test papers or like mock test papers of SSC, especially the graduate level, then you will find that the weightage of the narrations and the voices is so high. And that's the reason that I want to give the special emphasis on these two sections. And that's why I'm making the long series of the narrations videos. Well, today we are going to have a small discussion over the narration itself. Let us go for some previous work or that let us go for the rewind. If you remember in the last two parts, what we have gone through the assertive sentences, how to change the assertive sentences from direct to indirect, or the transformation of the direct speech into the indirect speech of the assertive sentences. And we have also gone through for the some common or some usual changes. Those are very mandatory in all type of sentences, whether they are from the background of or means background means I mean to say whether they are interrogative, assertive, optative, or exclamatory. They don't make any difference. Only the uh, means reporting verb and the conjunctions are changed, but the fundamental rules, those we have discussed of change in pronoun, we have discussed of change in tenses of the reported speech, we have discussed certain word changes like from this to that, from these to those, and such on. So these are very common and these are very mandatory in all type of sentences, whether they are imperative, exclamatory, optative, or like any other. So make sure that you will be going through with these last two parts. Now the question comes. So मैंने तो ये पिछले दो पार्ट देखे नहीं. Don't worry. आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, आपको वहां पे लिंक मिल जाएंगे. दूसरी चीज, क्यों ना वीडियो ही या चैनल ही सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी हम कोई नया वीडियो आपको लेकर आएंगे, इट वुड बी जस्ट गिविंग यू द अपडेशन कि भैया कुछ है आपके लिए. एंड मेक श्योर, आई एम वेरी 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 श्योर कि आप सभी लोग उसके साथ अच्छी तरह वर्कआउट कर रहे हैं. दोस्त, ये वीडियो मजे के लिए देखना है, टेंशन के लिए नहीं. एंजॉय करते हुए देखें. डेफिनेटली यू विल बी गेनिंग सो मेनी थिंग्स. क्लियर? चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू हैव द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या होते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? आई एम वेरी श्योर कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि इंटरोगेटिव क्या होते हैं. क्या होते हैं तो आप ही बताइए भाई, क्या होते हैं इंटरोगेटिव? सीधा सा है जिसमें इंटरोगेट किया जाए, मतलब कुछ पूछा जाए. देखा है ना मूवीज में, इंटरोगेशन, पुलिस इंटरोगेशन, थर्ड डिग्री, दैट सबने देखी है मूवीज भाई. तो इंटरोगेटिव मींस जहां पर कुछ पूछा जाए. दोस्त, अब यहां पर हमें बहुत ध्यान से दो चीजें समझना है.
इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली इंटरोगेटिव होगा कहां? रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग में तो वो अभी भी he said to me, he told me और like that जो भी होगा असर्टिव ही होगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच माने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। वो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो यदि इंटरोगेटिव है, अब कैसे पहचाने? बहुत आसान है। आप कहोगे सर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, बिल्कुल। उसके अलावा भी हमें कुछ समझना है। वो बच्चों वाले तरीका था क्वेश्चन मार्क देख के, तो आज हमें समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहले वो जिनमें क्वेश्चन की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, जिनमें क्वेश्चन की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। और दूसरे वो जिनमें क्वेश्चन की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड, जिन्हें आप WH वर्ड भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव एडवर्ब से होती है। जैसे हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, whose, whom, ये सब इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं। हाउ, है ना? जब क्वेश्चन की शुरुआत इन शब्दों से होती है तो सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और जब शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो तरीका कुछ और होता है। तो चलिए स्क्रीन शेयर पर चलते हैं हम लोग और बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से। So that narration part 3, नरेशन पार्ट 3। हाँ यार, थोड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे ना। कॉफी का मग रखा हुआ है, कुछ बुक्स रखी हुई हैं, मजे के साथ पढ़ते हैं। नो नीड टू बी ओवर बर्डन्ड। क्लियर? बर्डन्ड नहीं होना है हमें, हमें तो बस मजे के साथ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शायद आपको हम ही परेशान कर रहे हैं। चलो इसको हम अपने आप ऊपर फेंक देते हैं। Making the indirect speech of the interrogative sentences, the sentences those start with the helping verb, and second, the sentences those start with question words. So, the sentence those start with helping verb, हम सबसे पहले उनकी बात कर रहे हैं जो helping verb से start। इसको थोड़ा सा हम कहीं और ले जाके डाल दें, शायद आपको और थोड़ा सा कंफर्ट होगा इसके साथ। चलिए अब ठीक है। Now nothing is obstacle, हाँ? The reporting verb change in the form of ask। ध्यान से समझे। अभी तक जो रिपोर्टिंग वर्ब हम टोल्ड में बदलते थे या से के बाद टू दिया होता तो टोल्ड लगाते थे, वरना से ही रहने देते थे, है ना? से टू, इनको चेंज करते थे। से सैड ये दिया होता था तो कुछ चेंज नहीं करते थे, लेकिन जब इसके बाद टू दिया होता था तो सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में, सेइंग टू को टेलिंग में चेंज करते थे। लेकिन अब हम टेंस के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, उस टेंस के अकॉर्डिंग उसे आस्क की फॉर्म में बदलेंगे। जरूरी नहीं है, ऐसा कोई सरकारी नियम नहीं कि आस्क ही होगा, ठीक है? अब ये इंक्वायर भी हो सकता है, इंटरोगेट भी हो सकता है। अल्टीमेटली कहने का आशय ये है कि जो भी होगा, जो भी होगा पूछने वाले शब्दों के अर्थ में होगा, पहला रूल। दूसरा, कंजंक्शन के तौर पर इफ या वेदर का यूज किया जाएगा। द कंजंक्शन विल बी इफ और वेदर। क्लियर? और तीसरा, द रिपोर्टेड स्पीच विल बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, क्योंकि जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, कंजंक्शन से जोड़ने के बाद सेंटेंस असर्टिव ही रहेगा, चाहे वो इंटरोगेटिव था पहले, चाहे वो पहले
इम्परेटिव था, चाहे ऑप्टेटिव था, चाहे एक्सक्लेमेटरी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन से जोड़ने के बाद उसे असर्टिव ही बनाना है। असर्टिव बनाना है माने सीधी सी बात है, उसमें जो क्वेश्चन था उसे खत्म कर देना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ध्यान रखना, कोई भी चीज ऐसे नहीं हटती, कुछ ना कुछ अपना प्रभाव तो छोड़ती है। अब वो प्रभाव क्या है, वो प्रभाव क्या है, तो आते हैं अब अपन देखते हैं उसे आगे। बस इसमें इतना सा समझ लें आप कि असर्टिव सेंटेंस नहीं बनाना है, माने सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आप उसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कर देंगे। माय फादर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। देखो सिंपल सा सेंटेंस है, माय फादर सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब इंडायरेक्ट जो बनाया तो सेड टू का हो गया आस्क्ड। अब आस्क्ड की जगह हम लोग इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, हम इंटरोगेटेड भी लिख सकते हैं, है ना। तो माय फादर आस्क्ड मी, माय फादर इंटरोगेटेड मी, माय फादर इंक्वायर्ड मी। अब कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे अपन ने इफ लगा। अब आप कहोगे सर वेदर कब लगाते हैं, वेरी गुड। अब मान लीजिए सेंटेंस में यहां पर और लगाकर कुछ और चीज दी होती, जैसे हमने कहा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क और नॉट, जहां पर ऑप्शंस दिए हों वहां पर कंजंक्शन वेदर होता है। फिर से, जहां पर ऑप्शंस दिए वहां पर कंजंक्शन वेदर होता है, वरना इफ लगाएं, ठीक है ना। तो हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, अब अपन एक एक स्टेप करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क की किसी फॉर्म का यूज करना है एज पर द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सेड टू है माने पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, माय फादर आस्क्ड मी। चलिए इतना कंप्लीट हुआ। अब कंजंक्शन इफ है, इफ लग गया। अब यहां पर थोड़ा सा समझना कि यू से को सेकंड पर्सन है, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये अपन ने पढ़ा था। इफ आई, और आई पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे एज पर द टेंस, एज पर द रूल। तो हैव का हो जाता है हैड, तो हो जाएगा माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड, योर को फिर चेंज किया तो हो गया माय। क्लियर है, होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरह है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। माय टीचर सेड, अब नहीं दिया यहां पर टू, डू यू स्मोक डेली, यहां पर टू मी नहीं दिया है। मान लीजिए नहीं दिया, तब कैसे करेंगे, तब भी भैया अब यहां पर इंटरोगेटिव में तो चेंज करना ही है। वो करना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप असर्टिव बना रहे हो, और जब आप यहाँ पर असर्टिव बना रहे हो तो जब तक आस्क नहीं लगेगी तब तक समझ में नहीं आएगा कि पूछा गया था या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो माय फादर आस्क्ड इफ। अब डू का डिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्त जब हम इसे असर्टिव में बदलेंगे, नॉट नहीं दिया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, माय टीचर आस्क्ड मी इफ आई स्मोक्ड डेली। क्लियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदला, और पास्ट इंडेफिनिट में बदलने के साथ साथ असर्टिव बनाना था। अब असर्टिव में यदि नॉट दिया होता तो हम डिड नॉट लगा देते, लेकिन जब नॉट नहीं दिया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और फिर हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब माने पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर, खूब अच्छी तरह समझ में आया। हाँ सभी को। दोस्त जिसे नहीं समझ में आए ना, हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर अपनी प्रॉब्लम हमें सेंड कर दीजिए, डेफिनेटली हम आपके सभी कमेंट्स को एंटरटेन करें। चलिए आगे देखें। अब सेकंड पार्ट,
if the reported speech starts with a question word, if the reported speech starts with question word, then rule number फर्स्ट क्या है, जो अपन ने इंटरोगेटिव में पहले रखा था वही रूल यहां पर है, वही रूल यहां पर है. द रिपोर्टिंग वर्ब is replaced by the required form of ask or inquire or interrogate. Reporting verb को ask, inquire या interrogate की फॉर्म के अनुसार चेंज कर दिया जाएगा. होप समझ में आ रहा है ना? गुड. दूसरा, in such sentences no external conjunction is used. बाहर से कोई कंजंक्शन नहीं लगाना. तो सर पे क्या करेंगे दोस्त? छोड़ो तो ग्रामर, चलो अपन तो अपनी बात करते हैं. आपके साथ पहले बाहर आके आपसे बात करते हैं, फिर अपन अंदर चलेंगे वापस. सच बताओ, जब आप अपनी कॉपीज पर, बुक्स पर नेम प्लेट्स या नेम स्लिप्स लगाते हो और वो स्टिकर वाली होती है, तो उस पर क्या फेविकॉल या कुछ ऐसा कुछ लगाते हो क्या? नहीं ना. क्यों? क्योंकि उसमें पहले से ही स्टिकिंग है. यही रीजन है बस. तो यही रीजन यहाँ है, सेम रीजन है यहाँ, कि यदि क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब होता है. जरूरत पड़ने पर वो दोनों सेंटेंस को रिलेट करने की क्षमता रखता है. और जब पहले से हमारे पास कुछ व्यवस्था है चिपकाने के लिए, तो हम बाहर से क्यों लगाएं? तो बस यहाँ पर रूल वही आ गया. शेयर पर करें, ठीक है ना? तो कोई एक्सटर्नल कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता. क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही कंजंक्शन का काम करता है. क्लियर? और कंजंक्शन के बाद वैसे आपने देखा सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड लगता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, हु को छोड़कर. क्वेश्चन वर्ड लगता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, सामान्य तौर पे लगती है. वैसे हु के अलावा बाद में कुछ ऐसी वर्ब है जिनमें कुछ कंडीशंस लगती हैं, वो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना? और फिर सब्जेक्ट आता है, जी दिया है तो. लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो अपन ने अभी हल बात की कि हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, तो माने कंजंक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट लगेगा और फिर बाकी का सेंटेंस जैसे बनना है वैसे आएगा. जैसे हमने कहा, राजेंद्र सेड टू मी वेयर इज योर कार. तो हो जाएगा राजेंद्र इंक्वायर्ड मी और आस्क्ड मी वेयर माय कार वाज. अब योर कैसे चेंज हुआ? मी के साथ हो गया माय. वेयर माय कार वाज. क्लियर? नेक्स्ट, दीपिका सेड टू हर फादर why are you so upset. तो हो जाएगा दीपिका asked her father why he was so upset. दीपिका asked her father why he was so upset. Next, sorry, Neeraj said to me how will you go to Mumbai. सेंटेंस क्या हो जाएगा? नीरज asked me how I would go to Mumbai. अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर आई के साथ तो विल का शेल हो जाता और फिर शुड हो जाना चाहिए. तो दोस्त ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. हाउ आई शुड गो टू मुंबई से ज्यादा अच्छा है हाउ आई वुड गो टू मुंबई. क्लियर? दीपा सेड टू मी हु लव्स हर मोस्ट. अब यहाँ पर क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है हु के बाद. हमने अभी आपसे कहा था. तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है, तो हो जाएगा वास्तव में हु खुद अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है. दीपा आस्क्ड मी हु लव्ड हर मोस्ट, क्योंकि मान लीजिए
हु की जगह ही दिया होता तो अपन कैसे चेंज करते, ही लव्ड हर मोस्ट। तो हु यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, और जैसा लव्ड में चेंज हो जाता तो यहाँ पे भी वही हुआ है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया, आपको पूरी तरह समझ में आया, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस। होप कि अच्छी तरह समझ में आया है सभी को। तो ये थे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। और दोस्त यकीन मानिए कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ छोटे-छोटे से रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। आस्क इंक्वायर की फॉर्म में मैंने से को या जो भी दिया है, रिपोर्टिंग ऑफ से दी है, सेड दी है, तो उसे उस टेंस के अकॉर्डिंग आस्क, इंक्वायर या इंटरोगेट के फॉर्म में चेंज करना है। कोई भी एक्सटर्नल कंजंक्शन नहीं लगाना है, बल्कि खुद कॉशन वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा, और सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया था, उसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज। इतना सा रूल है। यदि थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, देन इट वुड बी क्वाइट इजी फॉर अस टू मूव विद दिस। होप कि आप सभी को पूरी तरह समझ में आया। ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। क्लियर? बाय द टाइम होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। और दोस्त आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि कहीं भी कोई भी डाउट हो आपको हमारे पढ़ाने में, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बेहिचक हमसे अपनी डाउट्स को डिस्कस कर लेना, अपना कमेंट हमें सेंड करिए, और हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पूरी कोशिश होगी। क्लियर? तो बाय द टाइम, वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।